गुड आफ्टरनून क्लास 9 बच्चे ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। तो सब तो पहले बच्चे कोन समझो कोन की है। कोन ਜਿਹੜਾ आइसक्रीम कोन ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ठीक है, ਇਹ शेप ਦਾ कोन ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ। ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਟੈਕਸ। ਔਰ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ O ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਖਿੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਨ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਨਾਲ, ਸਮੋਲ ਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨ, ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ O 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ H ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਟ, ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਬੇਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ L, ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ, ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਇਹ A ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OAB ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਇੰਗਲ OAB। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ H² + R² ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ L। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ L ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ R ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ H ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੋਨ ਹੈ, ਕੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਰਵਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ πRL ਦਾ, ਪਾਈ 22/7 ਜਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ 3.14 R, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ πRL, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, V ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ πR²। ਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ πR ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ πR ਕੋਮਨ ਹੈ, πR ਕੋਮਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ L + R। ਸੋ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੋਨ ਦਾ, πRL × L + R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ
द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ 7 सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, तुहानूं दिखदा पिया पाई आर एल असीं फॉर्मूला लगावांगे और आर की वैल्यू भी पता है और एल की भी पता है। पाई की वैल्यू तुसीं 22/7 लोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे 220 स्क्वेयर सेंटीमीटर बच्चे का आंसर आएगा, एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ਇਹਦਾ निकलेगा। ठीक है, और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द हाइट ऑफ ए कॉन इज़ 16 सेंटीमीटर, बेस इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यूजिंग पाई कितना दिता 3.14, पाई की वैल्यू 1.3 दी है, तो यह यूज़ करके असीं निकालांगे। सो हेयर द हाइट दी है, रेडियस तुहानूं आर दिता है। तो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि जदों तुहाडे कोल यह चीज़ बनती होएगी, सॉरी यह कौन है, कौन का आपां राइट एंगल ट्रायंगल लेना, इस तरह कुछ बनेगा, इस तरह कौन का एक पार्ट ले लिया, दिस इज़ रेडियस तुहानूं दिता 12 और तुहानूं हाइट जिहड़ी दित्ती है वो दित्ती है 16 सेंटीमीटर। तो तुसीं इत्थे पाइथागोरस लगाओगे, इनू मान लिया तुसीं एल है ना, तो इत्थे तुसीं पाइथागोरस लगा के एल की वैल्यू निकालोगे और एल की वैल्यू तुहाडे कोल की आई है 20 सेंटीमीटर। बस इन्ना काम है। सो एल की वैल्यू तुहानूं पता लग गया किस तरह निकाली है। एल की वैल्यू निकाल के उस तो बाद पाई आर एल का फार्मूला लगाता। सो पाई आर एल का फार्मूला लग गया तो तुहाडे कोल आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, मल्टीप्लाई किया 3.14 पाई की वैल्यू ली सी, आर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20, सो यू गैट द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिमिलरली बेटा तुसीं निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज़ नॉट बिग इशू, फॉर्मूला तुहाडे सामने पिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, क्लीयर है। तो ये असी वैल्यूज़ फिल कर दी, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करना बेटा आप जी का काम है सारे का, तो बहुत ही आसानी के नाल क्वेश्चन हो जाता। उस तो बाद नैक्सट तुहाडे कोल आ गया एग्जाम्पल नंबर 6, चार दाने आ रहे हैं ग्रेन से, तो असी दसना है कि फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब। तो पूरी वो छली जी है वो उत्ते किन्ने दाने तुहाडे कोल मिलणगे। याद करो, ध्यान रखो कि 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर के उत्ते 4 ग्रेन एवरेज लैके चल रहा कि 4 दाने 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर के उत्ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये देखो तुहानूं आर की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू दी हुई है, आर और एच की वैल्यू दी है, तो आप पाइथागोरस यूज़ करके असी एल की वैल्यू निकाल लाँगे। तो वो अप्रोक्सीमेशन तुहाडे कोल आ जानी है 20.11। ठीक है, इन्हूं सॉल्व करन ते स्केयर रूट सॉल्व करना तुहानूं आना चाहिए। देखो इनू स्केयर रूट नूं सॉल्व किया, सो इनू वैल्यू जी आप क्लास 8 सीखा होया कि मैं स्केयर रूट नूं सॉल्व करीदा, तो 20.11 समथिंग वो जी वैल्यू आ गई है। उस तो बाद बच्चे असीं पाई आर एल का फॉर्मूला लगा देंगे। सो पाई आर एल का वैल्यू लगा के तुसीं तुहाडे कोल रही कैलकुलेशन, पाई आर का वैल्यू हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 20.11 स्क्वेयर सेंटीमीटर, वह कि बच्चे आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, तो अप्रोक्सीमेशन उन्हें इन्ना कहा कि इन्ना एरिया वो को आ गया। उस तो बाद बच्चे देखो 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर के उत्ते 4 आ रहे हैं। ठीक है, 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर के उत्ते 4 दाने आ सकते हैं, तो तुसीं 4 नाल गुणा कर दोगे तो तुहाडे कोल की हो जाएगा, तुहाडे कोल आ जाएगा टोटल किन्ने जिहड़े वो आ रहे हैं वो उत्ते जिहड़े वो ग्रेन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो 530.92 दे समथिंग तुहानूं वो ग्रेन्स आ जाएंगे जिहड़े अप्रोक्सीमेशन जिहड़े आ जाएंगे। क्लीयर, सो ऐसी कोई औखा क्वेश्चन नहीं गा। तो इसी तरह आप देखांगे जियां एक्सरसाइज 13.3 किस तरह करनी है वो देखांगे असीं किवें, बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन करांगे नाल दे नाल, देखांगे किवें बनदा। हाँ जी बच्चे देखो एक्सरसाइज 13.3 किस तरह करनी है। डायमीटर ऑफ ए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, क्वेश्चन आप ही कर सकते हो तुसीं। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज़ 10.5 एंड द हाइट स्लांट हाइट दी हुई है। तो अगर डायमीटर दिता है तो डायमीटर नूं 2 नाल डिवाइड करो तो तुहाडे कोल की आ जाना रेडियस 5.25 सेंटीमीटर वह रेडियस आ जाना, तो हाइट तुहाडे कोल कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की आएगा पाई आर एल, तो पाई आर एल बच्चे मल्टीप्लाई करो, पाई आर एल का फार्मूला लगाओ एंड यू विल गेट 165 स्क्वेयर सेंटीमीटर तुहाडे की आ गया, इहदा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया।
बस इन्ना ही काम सी। इसी तरह बच्चे तुसी करना द फाइंड द टोटल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ द सलांट हाइट इज़ 21 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस इज़ 24। तो यूज़ किया उन्हें दसिया कि पाई की वैल्यू 22/7 तुसी यूज़ कर सकते हो। तो असी टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला तुसी बार बार इन्हूं लिखण ते याद कर लो। सो 24 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो अपने को ओबवियस है रेडियस आएगा, रेडियस 12 मीटर आ गया, सलांट हाइट तुहाडे को दित्ती है 21। तो इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करता, कैलकुलेशन करनी है तुसी। कई बार बच्चे ना 12 जिवें RL इनू मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ऐड करना इन्हों। फॉर्मूले वाल ध्यान देखो, फॉर्मूला की कह रहा, आर नू एल नाल प्लस करना। सो आर नू जो तुसी एल नाल प्लस करोगे तो इट मीनस 12 नू 21 ऐड करोगे 33 बनना। सो इस करके इत्थे 33 आया। तो कैलकुलेशन करोगे तुहाडे कोल की आ गया 1244.57 स्क्वेयर सेंटीमीटर तुहाडे कोल टोटल सरफेस एरिया कोन दा निकल गया। इसी तरह नैक्सट क्वेश्चन देखो बच्चे, ईजी, वैरी ईजी क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही वधिया ने, आसान ने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज़ 308 स्क्वेयर सेंटीमीटर, हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट की है, फाइंड द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है बच्चे, तो कुछ औखा नहीं गा। सब तो पहले उन्हें दिता है सलांट हाइट। तो कौन दी सलांट हाइट तुहाडे कोल पई है, ठीक है, ए सलांट हाइट 14 सेंटीमीटर कौन दी, और रेडियस बेस आप निकालना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो पाई आर एल की वैल्यू दी है तुहानू, पाई आर एल की वैल्यू 308 इज़ गिवन टू यू। सो पाई आर एल तुहानू गिवन है। सो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आप एक निकाल लाँगे, कुछ नहीं औखा। देखते हैं किस तरह करना है। तो सलांट हाइट बच्चे कितनी है, 14 दी हुई है तुहानू। तो रेडियस कितना होएगा बच्चे, उन्होंने असी आर एल एट कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो कि तुहानू 308 पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है। पाई आर एल एक्चुअली इक्वल कि देगा, पाई आर एल की वैल्यू जी है, पाई आर एल नू तुसी लिख सकते हो 308, क्योंकि दिस इज़ वाट कर्व्ड सरफेस एरिया दिता है। तो पाई की जगह तुम क्या भर दोगे 22/7। तो यही देखो कितना 22/7, और एल की जगह उन्हें 14 भरता है। जो तुम करोगे ये आर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 22/7 भी इधर चला गया, 14 भी इधर चला गया, तो आर की वैल्यू की आ गई तुहाडे कोल, कटिंग करके 380 नू 44 नाल कटिंग करके तुहाडे कोल आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है बच्चे, सो इस तरह अगर तुहाडे कोल 7 आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन यही डिमांड किया गया ही कि रेडियस निकालो। दूजी चीज़ की है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया। सो तुहाडे कोल हुण आर की वैल्यू और एल की वैल्यू दोनों ही हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, पाई आर एल तुहानू दिता ही होया 308। तो दोबारा कैलकुलेट करने की लोड़ ही नहीं है। तो सीधी पाई आर एल की वैल्यू निकालो, पाई आर एल की वैल्यू पा दो 308 नाल तुसीं स्केयर ऐड कर देना, पाई आर स्क्वेयर ऐड कर देना, एरिया ऑफ सर्कल तुसीं ऐड करना। सो तुहाडे कोल इस तरीके नाल करके 462 तुहाडे कोल की आ गया, इहदा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 के कह रहा है, एक कॉनिकल टेंट, देखो टेंट बनया होया, डायग्राम दी हुई बना के, वो हाइट जी जी हाइट देखते पे वो 10 मीटर हाइट दिता है। ठीक है, द रेडियस 24 है, रेडियस 24 है बेस का। तो सलांट हाइट पता करनी है। तो बच्चे इतने तुम की करोगे, पाइथागोरस लगाओगे। हाइट तुहाडे कोल 10 है, बेस तुहाडे कोल 24 है, तो यह एल निकालना है। पाइथागोरस यूज़ करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो यह निकालिया उन्हें, पाइथागोरस यूज़ की, एंड यू हैव एल इज़ 26 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 26 मीटर। ठीक है, उस तो बाद आ गया साढ़े कोल दूजा, कोस्ट ऑफ कन्वेंस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो कितना मटीरियल सानू की चाहिए, कन्वांस जो चाहिए आपां वो आपां दसने कोस्ट कितनी लगेगी, जेकर रेट कितना 70 रुपये, 70 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर का रेट है। तो सब तो पहले तो आप देखेंगे टोटल एरिया कितना निकला है। ठीक है, टोटल एरिया जिन्ना सानू, टोटल नहीं कहांगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड आप देखेंगे कितना एरिया बनता है जिहदे उत्ते आपां यूज़ करना। तो पाई आर एल बेटा इत्थे पाई आर एल लगाओ सीधा ही, कैलकुलेशन करो, तो तुहाडे कोल आ गया 13728/7 कैलकुलेट करने तो बाद इन्ना आ गया। और इनू तुसी रेट नाल मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। ਇਹ ਸੀ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦਾ। तो ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਨਾਲ। 70 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। तो रेट ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 70 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਈ 1,37,280 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है बच्चे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। तो 3 मीटर वाइड एक इस तरह की तुहाडे कोल टर्पलाइन है, रेक्टेंगल की शेप की बनी हुई है, ठीक है, 3 मीटर वाइड है। टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। तो आप एक टेंट बनाना था, इस तरह टेंट बनावांगे, उसकी हाइट अपने को आएगी 8 मीटर, ठीक है। एंड बेस की आएगा वह 6 सेंटीमीटर। यह 6 आएगा और यह 6 आएगा और यह 8। हाइट कितनी आएगी? 8 आएगी। सो अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटीरियल दैट विल required for stitching margin and the wastage is cutting is approximately 20 centimeter। 20 centimeter बेटा कहने मतलब कि अगर टोटल लेंथ L है, ठीक है, अगर टोटल लेंथ जी अपने को शीट दी है, ठीक है, टर्पलाइन की अपने को जी लेंथ है L है, तो वो 20 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। L के 20 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। क्यों करांगे माइनस? क्योंकि 20 लेंथ जी है सेंटीमीटर लेंथ खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उन्होंने बनाने वास्ते मार्जिन वगैरह वास्ते वो शीट आप वेस्ट करती। सो कह लो कि तुहाडे कोल जिहड़ी लेंथ रिक्वायर्ड है मटीरियल बनाने वास्ते वो है L-20 तो ब्रैथ है उसकी 3। तो एरिया बच्चे कि कोल हुंदा। सो टोटल एरिया कितना होएगा शीट का? एड़ा रेक्टेंगल तुसीं देख रहे हो, कितना होएगा 3 × L-20 होएगा, ठीक है। टोटल एरिया होएगा जो आप यूज़ करना। तो सब तो पहले असीं देखिए सी साडे कोल ए ते आ गया, साडे कोल ए हुण तुसीं याद रखियो 3 × L-20। तो हुण असीं देखांगे कि साडे कोल जिहड़ा टोटल एरिया है वो कितना होएगा साडे कोल। सब तो पहले तो हाइट दी हुई है, तो बेस देख लिया, ये आप सलांट हाइट कढ़ ली। सलांट हाइट बेटा साडे कोल कितनी आ गई? 10 मीटर। सो इत्थे πRL लगा देंगे असीं, πRL वैल्यू लगा के असीं निकालांगे कितना एरिया चाहिए सानूं। सो 188.4 स्क्वेयर मीटर साढ़े कोल की आ गया जिहड़ा एक्चुअल दे विच आपां यूज़ करना है कॉनिकल टेंट बनाने वास्ते टर्पलाइन। तो बच्चे आपां कढ़िया की सी हुणे असीं कढ़िया सी 3 × L-20 सेंटीमीटर। तो क्योंकि लेंथ तुहाडे कोल की सी लेंथ आ 20 सेंटीमीटर, लेंथ तुहाडे कोल मीटर च है, यह तुहाडे कोल 20 सेंटीमीटर है। तो इनू आपां पूरे नूं कन्वर्ट कर लीए मीटर दे विच। तो L-20 सेंटीमीटर दे विच कितने मीटर आएंगे साढ़े कोल? 0.2 मीटर आएंगे, ठीक है, 100 नाल डिवाइड करन ते। तो L-0.2 मीटर साढ़े कोल आ गया रिक्वायर्ड। तो असी लेंथ लई, लेंथ कितनी आएगी? L-0.2 तो ब्रैथ कितनी है? 3.3 मीटर। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रैथ हुणे आपां दस्सिया सी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रैथ तुहाडे कोल की बनेगी? एरिया। वो एरिया कितना जिन्ना साढ़े कोल टेंट का चाहिए उन्होंने वो इक्वल कर लाँगे और लेंथ आ जाएगी तुहाडे कोल 63 मीटर। ये 20 सेंटीमीटर कढ़ती आप नहीं, सॉरी, यह फुल लेंथ है, ठीक है। यह फुल लेंथ आ गई जी सानू चाहिए है वो बनाने वास्ते टेंट बनाने वास्ते। और ये ही असी 20 मीटर के ही 0.2 मीटर की करांगे यूज़ कर लाँगे वो स्टिचिंग वगैरह वास्ते, एक्सट्रा मटीरियल जिन्होंने असीं कह दिंदे हां। सो ऐसी बेटा तुहाडा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। सेम है। सो द स्लांट हाइट एंड द बेस ऑफ ए कॉनिकल टॉप आर 25 मीटर 14 मीटर रिस्पैक्टिवली, ठीक है। तो कॉनिकल टॉप है तुहाडे कोल, तो ओदी जिहड़ी 20 मीटर ओदी दित्ती है हाइट 25 स्लांट हाइट बच्चे और डायमीटर होता 14। तो डायमीटर में आप डिवाइड करांगे 2 नाल ते 7 तुहाडे कोल की आ जाएगा ਉਹਦਾ रेडियस। तो 25 मीटर ਉਹਦੀ की आ गई स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। कुछ इस तरह बनेगा नहीं, कुछ इस तरह बनेगा। दिस इज़ 7, दिस इज़ 25,
तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ to use pi RL. By using pi RL we have area required 550 meter square meter. ਸੋ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੋਸਟ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਈਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 100 ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ 210 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 550 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ 100 ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 210 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਕੋਸਟ। तो 1 मीटर स्क्वेयर की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस है 100 ਨੂੰ सीधे शिफ्ट कर दोगे क्योंकि बन जाएगा 210 बाय 100। ठीक है, सो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो 550 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ऑब्वियस ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ 550 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 210 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 550। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਆਹ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ठीक है, यह वाली किस तरह आई है, वो उसी तरह आई है। यह टोटल आप 550 की निकाल ली कितनी वैल्यू बनती, तो इस तरीके ना तुसी कॉस्ट निकाल लोगे। तो कितनी आ गई कॉस्ट 1155 रुपये कॉस्ट आएगी उन्होंने वाइट वॉशिंग वास्ते। इस हाय रब्बा। सो नैक्सट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन 7 देखो किमें करना। ये दिता है तुहाडे कोल बच्चे जोकर कैप हैगी तुहाडे कोल। जोकर कैप इस तरह की होएगी जिसका रेडियस तुहानूं दिता 7 और उसकी हाइट दी है 24। तो बच्चे इत्थे आपां नूं सलांट हाइट की लोड़ पैनी है। तो जोकर कैप हैगी है राइट सर्कल कौन लग गई, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ओबियस है तुसीं इक्को ही एरिया निकालोगे, एक कैप का एरिया निकाल लो, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो 10 के नाल। तो सब तो पहले रेडियस निकाल लिया, रेडियस तुहाडे कोल हैगा वा, हाइट तुसीं लिखी और सब तो पहले आप सलांट हाइट निकाली, पाइथागोरस यूज़ किया और 25 की आ गई ਉਹਦੀ ਸਲਾਂਟ हाइट आ गई। पाइथागोरस ध्यान इस्तेमाल करना, इत्थे गलती नहीं करनी। तो 1 पाई आर एल 1 कैप का एरिया कि होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू निकाली तो बच्चे की आ गया 550 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो यह एक कैप का एरिया आया तुहाडे कोल, तो तुसीं 10 कैप की निकालना तो की करोगे 10 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा, बस कुछ नहीं काम करना। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी ईजी। वाई सो ईजी, क्योंकि सेम वही कैप वांगू ही है। ये बच्चे की कह रहे हैं कि बस स्टॉप के बैरीकेटेड इज़ बैरीकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50। देखो बैरीकेटिंग की गई है, होलो कॉन्स रखे ने। तुसीं देखा होगा ट्रैफिक वाले कोई इस तरह के कॉन दे होंगे जिहड़े जमीन के उत्ते ट्रैफिक कंट्रोल करने वास्ते उन्होंने रखे होंगे ने। तो 50 होलो कॉन ने इस तरह के एक कार्डबोर्ड तो बनाए गए ने, रीसाइकल किया गया कार्डबोर्ड में उस तो बनाए गए ने। ईच कॉन हैज़ ए बेस 40। तो हर एक कॉन का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ओबियस उसका रेडियस कितना होएगा बच्चे 20 सेंटीमीटर होएगा और वो हाइट दी तुहानूं 1 मीटर। हुण इत्थे गलती नहीं करनी, इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ा हाइट है 1 मीटर है, कहने मतलब कि मीटर च है और इत्थे सेंटीमीटर च है। तो 20 सेंटीमीटर के अगर तुसीं मीटर बनाने हो तो 100 नाल डिवाइड कर दो, तो 0 नाल 0 कट्टेगी तो यह बन गया 0.2 मीटर। तो इट मीनस रेडियस तुहाडे कोल कितना आएगा 0.2 मीटर तुहाडे कोल रेडियस आ जाएगा उहदा। देखो किवें कीता, तो देखो फस्ट स्टैप के उत्ते उही कीता जो मैं तुहानूं दस्सिया 0.2 मीटर साढ़े कोल रेडियस आ गया। कौन की हाइट कितनी है बच्चे 1 मीटर। तो स्लांट हाइट निकाल लाँगे पाइथागोरस लगा के। सो पाइथागोरस लगाई और 1.02 मीटर तुहाडे कोल की आ गई स्लांट हाइट आ गई। कौन की स्लांट हाइट तुहाडे कोल 1.02 मीटर तुहाडे कोल स्लांट हाइट आ गई। हुण असीं पाई आर लगा के एक कौन का एरिया चैक किया, एक कौन का एरिया देखो इत्थे पाई की वैल्यू उन्हें दी हुई है 3.14 और अंडर ऑफ 1.04 की वैल्यू भी दी हुई है। देखो पाइथागोरस दे विच ना तुसीं इत्थे इहदी वैल्यू सीधी डायरैक्ट भरी है, देखो तुहानूं दी हुई है 1 स्केयर रूट ऑफ अंडर ऑफ 1.04 की वैल्यू तुहानूं दी है 1.02। सो वैल्यू फीड की है विच आपां उहदे। ठीक है, सो ये आएगा पाई आर एल की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.4 दी हुई है। तो वह वैल्यू आप चुक के इतने पाई तो साढ़े को आ गया एक कौन का कितना एरिया जो आप पेंट करना है वह है 0.64056 स्क्वेयर मीटर सॉरी।
तो 50 ਕੌਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬਸ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32.028 ਸਕੁਆयर मीटर ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। तो ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਦਾ रेट की है कॉस्ट की है दी 12 रुपीज़ 12 तो मल्टीप्लाई कर दो 12 ना यू विल गेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल 50 होलोकॉन्स 384.36 33.6 तो यह बच्चे अज का काम सी एक्सरसाइज में ध्यान नाल देखो दोबारा करो चंगी तरीके दे नाल अपने हथ नाल निकाल के देखो और कैलकुलेशन वाल ध्यान दिओ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुसीं मैनूं कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू वेरी मच।